the question कि what is the advice for an absolute beginner जो अभी they have just started reading books? Number one, identify which genre of literature do you like. बहुत important. क्योंकि हम discourage हो जाते हैं अब तला तुम्हें पसंद है for example science fiction और तुम हिस्ट्री की किताब ले आए हैं ऐसे या तुम्हें फलसफा पसंद है और तुम एक रोमांटिक किताब ले आए, the probability of success or finishing that book will be low. Identify your genre. आपको क्या पसंद है? Fiction, non-fiction, classic, biographies, autobiographies, self-help, religious literature, falsafa, psychology, whatever you like. Identify that, number one. Number two, once you identify, buy short novellas around that. जैसे जॉर्ज ऑरवेल है ना, अगर आपको fiction पसंद है, start with Animal Farm. Probability of finishing an Animal Farm is much higher than probability of finishing War and Peace. या Simone de Beauvoir की The Second Sex. These are thick books. So number two is start with short novellas, short stories जो आप खत्म कर सकें. और आपको एक sense of accomplishment मिले. यार मुझे बुक खत्म कर ली. I've started reading. Yeah, I've started reading. Number three, don't use reading as a sedative. As a tranquilizer. रात को सोने से पहले अक्सर लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं हमें नींद आ जाती है. ठीक है. तो अगर आप फोकस्ड जब तक होके नहीं पढ़ोगे, so read when you're focused. Or I think morning is a good Morning is a good time as soon as you wake up. If somebody is an early riser, is good enough. ये चौथा हो गया. Third हो गया. Third हो गया. Third. Fourth is install 2 apps in your mobile. One is Goodreads and other is Audible. ठीक है. And the third is the one Blinkist. Blinkist. Do that. 3 applications आप डाउनलोड करें. और ये सामने पड़ी होनी चाहिए. हाँ सामने डेस्कटॉप के ऊपर. मोबाइल के डेस्कटॉप के. और नोटिफिकेशंस ऑन. पांचवा स्टेप है जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, इन्वेस्ट इन बुक्स. मेरे डेस्क के ऊपर कितनी किताबें पड़ी होती हैं और लोग कहते हैं मैं बोरो कर लूँ. मैं कहता हूँ बोरो तो कर ले मेरा भाई, लेकिन तू पढ़ेगा नहीं, मुझे पता है. क्यों? लोग ये व्हाट्स द कॉज ऑफ अ जिंगर बर्गर 700-600 एक मील. अगर आप KFC में खाएं, KFC तो बहुत ही वो है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं एटलीस्ट 1500-2000 रुपए का पर हेड आ रहा है आराम से आजकल. बिल्कुल. और आपको 1500 रुपए में किताब मिल जाती है और वो किताब आप 3 महीने पढ़ सकते हैं, 4 महीने पढ़ सकते हैं, लेकिन आप खर्च नहीं करेंगे. Why? Because we do not know the art of investing in books. I say, if you start investing in books, you do not need to invest in any other thing in the world. You do not. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ. It's a whole new world. It builds your personality. It builds your existence. It roots you. It exposes you to the world. It makes your mind grow. It makes your cognitive ability grow. It makes you think. You become emotionally sound. I can go on and on. इसके असरात क्वांटिफाई नहीं किए जा सकते. और ये इन्वेस्टमेंट वो है जो आपको हर तरीके से रिटर्न देगी. मॉनेटरीली देगी और आप इतनी दौलत कमाओगे कि जिसकी इंतहा नहीं है. हाँ, if you tread the right and you do all the other things right. So learn the art of investing in books. मेरे ऊपर इसकी एक वीडियो मेरे पास इसकी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया था कि स्टूडेंट को कितना बजट करना चाहिए. सही है. हाउसवाइफ को कितना बजट करना चाहिए. एक एग्जीक्यूटिव जो है, जो बिगिनर है, जो अपने करियर के स्टार्ट में, उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए. मैथमेटिक्स के साथ बताया कि कितना, how much should one spend on reading, on buying books. So people can go and watch that video as well. Sure. I would say if you are earning 1 लाख रुपए ना, तो 1500 रुपए या 2000 रुपए 2%. वो तो लाजमी, वो तो हक बनता है जी बुक रीडिंग्स. क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के अंदर. लोग कहते हैं, मुझसे पूछते हैं हम अपने बच्चों के लिए क्या करें. ऐसे कि बच्चों के लिए कुछ करना है ना, तो उनको किताब बीनी की हैबिट लगाते हैं. फिट सी एक लाइब्रेरी बना दो उनके लिए. फिट सी लाइब्रेरी, और उनके अंदर ये इनग्रेन कर दो कि यार किताबों के साथ जो है ना अपनी दोस्ती बना लें. और उसके अंदर सारी बुक्स पढ़ी हो, अच्छी सारी बुक्स पढ़ी, और सारी बुक्स ये फलसफे की. कोई बुक ऐसी ना हो जो आपके नहीं यार ये. मैं आज मुझे एक कमेंट आया मेरे फेसबुक के ऊपर कि सर आई लव योर बुक रीडिस्तान, यू हैव कवर्ड 50 बुक्स एंड आई वांटेड टू डोनेट इट टू अ लॉट ऑफ स्कूल्स, लेकिन मैं नहीं किया. क्यों? उसके अंदर 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने फाड़ के
फिर अपनी फैमिली को दिए। उसमें एक बुक है लॉलिटा, यू हैव रेड लॉलिटा? No. व्लादिमीर नाबोकोव की, वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेल्स ऑफ ऑल टाइम। और दूसरी है टैबू। Hmm. तो मैं उन 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 हजरत की सोच को समझ सकता हूँ, एंड आई डू नॉट कंटेस्ट हिज थॉट, लेकिन ये लोगों की सोच है। टैबू इज अबाउट द रेड लाइट एरिया ऑफ लाहौर, सही है, मैंने अपनी बुक में कवर किया। ठीक है। और लॉलिटा is a story about a 38-year-old professor Humbert who falls in love with a 12-year-old who's sexually attracted to a 12-year-old girl. उसका नाम है लॉलिटा। मूवी भी है इसके ऊपर। अच्छा, It's one of the finest novels ever written. It's one of my favorites. तो मैंने उसको रीडिस्तान में कवर भी किया। So what I'm trying to say is, if you develop or if you understand how to invest in books, you do not need to worry about any other investment. This is step number 5. And step number 6 is subscribe to Book Buddy. this is very important. This is very, very important. ताकि कोई YouTube खोले तो पहले ही वो आ जाए सामने। आ जाए सामने। इसके बाद ये भी है कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ में होते थे तो वी यूज्ड टू आस्क आवर टीचर्स कि जी हमने तो बुक्स पढ़ ली, लेकिन व्हेन वी रीड समथिंग तो वो कुछ टाइम बाद वो चीज़ भूल जाती है। हाँ, ये भी बहुत सवाल आता है मेरे पास ना कि हम जो पढ़ते हैं हमें भूल जाता है। देखो, एक तो तरीका ये है कि पीपल नीड टू मेक नोट्स फॉर व्हाट दे रीड, नॉट ड्यूरिंग रीडिंग, वंस दे रीड। एक दफ़ा आपने एक सेशन लगाया 15-20 मिनट का, उसके बाद जो भी आपने पढ़ा उसके छोटे मोटे नोट्स बनाने। दूसरा ये एक आपको फिजिकल नोट्स बनाने, एक मेंटल नोट्स बनाने। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बुक पढ़ रहे हो परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, आप एक किताब पढ़ रहे हो या 1984 पढ़ रहे हो। अब आप वो किस माहौल के अंदर पढ़ रहे हो? आपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, रूम के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, उस वक्त आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उस जो किताब के अंदर हो रहा है उसका कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू किताब के अंदर ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी से या ज़िंदगी के किसी वाक़े से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है। व्हेन यू मेक दीज मेंटल कनेक्शंस विद द बुक एंड यू डॉवटेल इट विद योर पर्सनल लाइफ, तो उसकी लॉन्जेविटी इन योर माइंड बढ़ जाती है, रिट्रीवल उसका बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर। 1984 जो जॉर्ज ऑरवेल की किताब है, वो उसमें बिग ब्रदर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है जी, कि नथिंग इज हिडन फ्रॉम द बिग ब्रदर, ही इज एवरीवेयर। अब इससे हम क्या चीज रिलेट कर सकते हैं? मॉडर्न सर्वेलेंस, आपके मोबाइल डिवाइसेस, हर वक्त कोई ना कोई आपको सुन रहा है और देख रहा है। अब आपने कनेक्शन बना लिया 1984 के साथ, राइट? अब ये आपको सोच कभी भी नहीं भूलेगी, क्योंकि मैंने अभी बैठे बैठे आपका एक कनेक्शन बना दिया आपकी जिंदगी से, मोबाइल से, और लाइक यू से कंट्रोल द थॉट। सो कंट्रोलिंग द थॉट वाला जो है शायद पाकिस्तान में भी है, शायद नॉर्थ कोरिया में भी है। अब आपने उस किताब से रिलेट कर दिया, अब आपको 1984 कभी नहीं भूलेगी। ठीक है। हमने आज 1984 एनिमल फार्म को रिलेट किया किससे? पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से। आप स्क्वीलर को कह दो कि यार ये है, आप मिस्टर जोन्स को कह दो ये कैरेक्टर है, हाँ, आप उसको वो हॉर्स जो था उसको कोई और नाम दे दो, आप ये दे दोगे, आपको ये कभी भी नहीं भूलेगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मेरे सामने नॉर्मली आता है वो ये है कि मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि यार व्हाई डोंट यू गेट आउट ऑफ योर बुक्स, और हर वक्त किताबें पढ़ते हो, गेट अ लाइफ और समथिंग। ये वो लोग कहते हैं जो किताबें खुद नहीं पढ़ते। यार तूने सारी उम्र किताब नहीं पढ़नी, यार प्रैक्टिकल आ जा। ये इन लोगों को बताओ कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स कौन है? अभी कौन है? बेजोस, इलॉन मस्क है। अभी बेजोस है यार, इलॉन मस्क सेकंड पे होगा, बेजोस है एक ही कैटेगरी में। बिल गेट्स को ले लें, बिल गेट्स तो काफी पीछे चला गया। इलॉन मस्क इज अ वोरेशियस रीडर टू द एक्सटेंड कि बचपन में जब वो किताब पढ़ता था, उसकी माँ कहती थी, उसकी माँ को लगता था कि ये जो है ना डेफ हो गया, बहरा हो गया, क्योंकि वो आवाजें देती रहती थी, वो सुनता नहीं था। He was so engrossed into books. A journalist asked him, how did you have no background of space sciences, how did you establish such a successful company like SpaceX? He said, I read. I was always sort of really interested in reading when I was a kid, and I would read everything that I could get my hands on. I read the encyclopedia. So if Elon Musk, दुनिया का अमीर तरीन आदमी, reads, Bill Gates, दुनिया का अमीर तरीन आदमी रहा है, he reads. Obama, he reads. George Bush, he reads. You pick up any individual, any successful individual, 90% of them are voracious readers. Why? मैंने इस पॉडकास्ट के शुरू में बोला था,
इट इज अ मीन्स टू एन एंड, इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ. रीडिंग आपको वो सोच देती है, वो विजडम देती है, वो इंटेलेक्ट देती है, वो दानाई देती है, जिसके जरिए आप अपनी शख्सियत को ऑप्टिमाइज कर सकते हो.